Hello everyone, myself Kushali Kathiria. In previous video we discussed propositional logic, okay, introduction of proposition logic. In proposition logic we discuss rules for the operator, okay. So now from this kind of operator like and or not operator, by conditional operator, okay. So now from this kind of the rule we discuss example for the proposition logic, okay. So let's start. In this slide, in previous video we discussed operator keyword, okay. In as per operator keyword, here I give one property, list of property for the operator, so we will discuss about it. So first one is the commutatively operator, okay. So this is a and these are for the and or operator, okay. All operator are and or operator, okay. So first of all, p and q, maybe we can write like this, q and p, okay. P or q, so we can write like this, q or p, okay. Another rule is a associatively operator. So in associatively operator, we move our bracket from the first two proposition to another two proposition. Here first sentence is for the and operator, okay. So here p and q is a one bracket and r is a वो कहाँ है, बाहर की साइड है. So here we move from the p and q, our bracket from p and q, we move our bracket to r and q, okay. Another is same things for the or operator, okay. This one is the identity element. It means if we have a and operator, okay, if we have a p proposition with true value with and operator, then our output is always be p. It means our proposition p. If our value is a if our proposition are p or our value is a true, then it always give output as a true, okay. P is maybe false or true, but if we have a true value, then we have a or operator, so we always select a true as our output or our validity, okay. This is a distributive operator. What is a distributive operator? It means we distribute our and or operator in such a way, like here this example for the and or operator. This is a and operator, this is a or operator. So here we distribute our bracket like this, p and q, p and r, okay. But p and q and p and r, but we join this both bracket with or operator, okay. If p and q, okay, sorry, if नहीं, p and q or p and r, it either p and q or p and r, का तो वो p and q हो सकता है, क्या तो भी वो p and r हो सकता है, ओके. दोनों में से कोई एक होगा. So this is a representation for the p and q bracket into q or r. Same thing for the or and r operators, okay. So these are the difference between these. Second thing is the De Morgan's law, okay. What is the De Morgan's law? De Morgan's law, it means here we remove our brackets and we move our negation sign into a bracket. So we can say like this, this is our negation sign in bracket p and q, okay. So we can say, or we can write like this also, like a not p and here we move our negation from bracket, okay. So here not p, this sign is a or and sign, okay. So here we swap our sign with the or sign, okay. Here we apply a negation to all sign also, okay. हमें क्या करना है, हमें हमारा जो नेगेशन साइन है उसको हमें ब्रैकेट के अंदर ले जाना है. ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो जो हमारा ट्रू पी है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स पी हो जाएगा, ओके. हमारा जो ट्रू क्यू है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स क्यू हो जाएगा. और हमारी जो एंड की साइन है वो क्या हो जाएगी, और की साइन हो जाएगी, ठीक है. दिस इज अवर डी मॉर्गन लॉ, ओके. सेम थिंग फॉर द और ऑपरेटर. अगर
यहाँ पर हम एक चीज देख सकते हैं, अगर हमारा p की वैल्यू है, अगर वो ऑलरेडी q है, सॉरी ऑलरेडी नेगेटिव है, अगर दो नेगेटिव नेगेटिव एक साथ आएंगे तो क्या होगा, डबल नेगेशन एलिमिनेशन। इट मीन्स दोनों फॉल्स आएंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेगेशन दूर हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, प्योर मतलब ट्रू वैल्यू हो जाएगा। ओके, नेगेशन नेगेशन है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, so this is our De Morgan law. So this is a property for the operator. Now we discuss why we need a proposition logic. Okay, so here we have also discussed about a and b and a should have a same meaning, but in natural language word and sentence may have a different meaning. Okay, as per our proposition logic we can say like p and q is equal to q and p, both are same. But if we talk about our natural language, okay, then here I give one example for that. First example is in our example first sentence is Radha started feeling feverish and Radha went to doctor. वो क्या था कि राधा को feel not well. Okay, then Radha went to doctor. Radha doctor के पास गई. Another sentence is this one is a. Okay, Radha started feverish. This one is the a, and this is a and operator, and Radha went to doctor. So this is a B sentence. Okay, now we swap this. Okay, here our second sentence is B and A. So what is a B? B is a Radha went to doctor. Okay, so Radha went to doctor and Radha started feeling feverish. So this is a meaning for our नेचुरल लैंग्वेज. ओके, वो क्या था, ए और ए एंड बी का था. फर्स्ट सेंटेंस क्या है, ए एंड बी के लिए है. सेकेंड सेंटेंस है बी और बी एंड ए के लिए. ओके, अगर प्रोपोजिशनल लॉजिक की बात करें तो ए एंड बी और एंड बी एंड ए दोनों का जो आंसर है, जो वैलिडिटी है, वो क्या है, सेम है. बट अगर हमारी नेचुरल लैंग्वेज के बारे में बात करें तो वो क्या है, वो दोनों अलग अलग है. राधा स्टार्टेड फीलिंग फेरविश, उसको अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो कहाँ गई, डॉक्टर के पास गई. ये नहीं था कि वो डॉक्टर के पास गई, बाद में उसे अच्छा नहीं लगा, वो बीमार हो गई, ये वाली बात नहीं है. ओके, so here sentence 1 and sentence 2 have a different meaning. In AI proposition logic is a relation between truth value one sentence to that of the truth value of another statement. Okay, अगर वो सही है truth value तो may be in our natural language it may be true or false. Okay, so here we use our propositional logic for this kind of the sentence, but in our natural language it may be different. Okay, so here let's start with the example. Okay, so first example is for the first example for the proposition logic is for this. Okay, हमें क्या करना है, हमें ये दो जो सेंटेंस है ना, ये फर्स्ट सेंटेंस है और ये दूसरा वाला सेंटेंस है, उसका हमें ट्रूथ टेबल आइडेंटिफाई करना है. ओके, सो वी वांट टू आइडेंटिफाई ट्रूथ टेबल फॉर दिस काइंड ऑफ द सेंटेंस. So here we have a two proposition P and Q. So we have a truth table P and Q 1 1 0 0. Q have a 1 0 1 0. Okay, हमें ऑलवेज यही बात याद रखनी है कि हमें जो ट्रूथ टेबल बनाए ना, उसमें ऑल जो हमारी पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जानी चाहिए, कवर हो जानी चाहिए. इसीलिए यहाँ पर हमारी सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, हम कैसे उसको लिखते हैं, तो हम P की जो वैल्यू है ना, वो टोटल 4 वैल्यू है. ठीक है, तो हमें क्या करना है, ट्रू है और 2 है वो क्या है, फॉल्स है. तो हमें पता है कि P की सब पहली ट्रू वैल्यू लिख देते हैं, बाद में फॉल्स वैल्यू लिख देंगे. क्यू के लिए क्या लिखेंगे, फर्स्ट ट्रू फर्स्ट फॉल्स, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, थर्ड ट्रू फोर्थ फॉल्स, ऐसे लिखेंगे ना, तो और कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा. अब हमें क्या चाहिए, हमारे सेंटेंस में हमें चाहिए P एंड Q. सो दिस वन इज अवर P एंड Q. ओके, और क्या चाहिए, उसका नेगेटिव, इसका नॉट वर्जन चाहिए. ओके, बाद में हमें क्या चाहिए, P इम्प्लाइज नॉट क्यू चाहिए, इसलिए यहाँ पर नॉट क्यू. ओके, एंड दिस इज अवर सेफ साइड. ओके, हमारे सेफ जोन के लिए अगर आप बिगनर हो, ओके, आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हो ट्रूथ टेबल में प्रोपोजिशनल लॉजिक को, तो ये वाली साइड क्या है, सेफ है.
तो हमारा प्रोपोजिशन लॉजिक है जो वो क्या बन के आएगा, अच्छे से बन के आएगा, इसीलिए। ठीक है, सो हियर वी चेक दिस टू सेंटेंस आर ट्रू और नॉट। ओके, तो हमें क्या करना है, तो ये हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो क्यू है ना, नॉट क्यू, उसको यहाँ पर लिख दिया और लास्ट में हमने ये वाला यूज कर लिया। इट मीन्स we need a p and q, we have not p and q and we want to p implies not q। तो ये दोनों के ऊपर से हमें क्या करना है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ऊपर से हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये दोनों सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। ओके, हियर मैंने क्या किया है, इम्प्लाइज के एंड और तीनों के क्या लिख दिए, मैंने यहाँ पर वो टेबल, ट्रूथ टेबल लिख दी है कि जिसकी वजह से आपको वो आसानी से समझ में आ जाए और आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सके। ओके, आफ्टर मल्टीपल प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी होगी प्रोपोजिशनल लॉजिक को, ट्रूथ टेबल बनाने को, तभी आपको ठीक है अच्छे से आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ p and q value for the proposition. We have a not q, not q, it means negative version for the q. So if q is a true, then not q is a false. If true is a q is a false, then not q is a true. Okay, so 1 is a 0, 0 is a 1, 1 is a 0 and 0 is a 1. So we have a not q. Okay, now we want to p and q. अब हमें क्या चाहिए, p and q का चाहिए। ओके, एज पर अवर ट्रूथ टेबल, ओके, p and q का जो ट्रूथ टेबल है उसमें क्या है, अगर दोनों ट्रू है तो ही ट्रू होगा, एंड इट मीन्स अगर दोनों ट्रू है तो ही हमारा आंसर है ट्रू आएगा, अगर एक भी कोई फॉल्स है तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों ट्रू है, किसी भी अनदर कंडीशन में दोनों ट्रू नहीं आएंगे, सब फॉल्स ही आएंगे, कोई एक तो फॉल्स हो गई होगा, तो 1 0 0 1 0 0, तो ऑल वैल्यू आर द false। Okay, so our p and q like this 0 1 0 0 0। Okay, now we negative impact for the p and q। okay, अब हमें क्या करना है, नेगेटिव वर्जन आपको फाइंड करना है। ओके, क्योंकि हमारा सेंटेंस है वो इस टाइप का, इसीलिए तो हमने क्या किया, 1 था वहाँ 0 कर दिया और 0 था वहाँ पर 1 कर दिया। ओके, सो 0 1 1 1। नाउ वी वांट टू आइडेंटिफाई p implies नॉट क्यू। ओके, नॉट क्यू, यहाँ पर हमारे पास कौन सा है, p implies q का, और हमें क्या चाहिए, p implies नॉट क्यू का। तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर नॉट क्यू वाला जो है वो वाला हम यहाँ पर एज ए इम्प्लाइज को यहाँ पर यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, p implies नॉट q, हम ये वाली जो कॉलम है वो और ये वाली जो कॉलम है वो हम यूज करेंगे। ओके, ओके, ये वाली कॉलम है वो और ये वाली जो कॉलम है उसको हम इस वाली कॉलम के लिए यूज करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, व्हाट इज अ वैल्यू, ओके, व्हाट इज अ वैल्यू फॉर द p implies नॉट q। ओके, implies का इट मीन्स अगर दोनों ट्रू है तो वो ट्रू, अगर q है जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो ट्रू फॉल्स है तो हमारा p implies q क्या होगा, वो फॉल्स होगा। अनदर ऑल सेंटेंस में क्या है, वो ट्रू है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 is a true, q is a false, then false। okay, true true, then true, false false, true, false false, true true। so this is our p implies not q sentence। these both are the same, then our sentence are same। okay, हमारा ट्रूथ टेबल था वो क्या था, इन दोनों का हमें क्या लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है, बट एक्चुअल में ये अलग अलग सेंटेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों की ट्रूथ टेबल की वैल्यू है वो क्या आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है, इसलिए उसकी ये दोनों वैल्यू सेम है। now another example for the another sentences। okay, here we have a three sentence, not p or not q or r, another sentence is q or r, and another sentence is p implies r। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक तो चाहिए नॉट p नॉट q। ओके, तो यहाँ पर मैंने नॉट की p और नॉट q आइडेंटिफाई कर लिया है, बाद में मैंने क्या किया उसका और वर्जन। ओके, नॉट p और नॉट q and or sorry or r। okay,
सेकेंड सेंटेंस हमारा क्या है, Q और R, Q और R, एंड थर्ड सेंटेंस इज P implies R, ओके। बट हमारे पास प्रोपोजिशन कितने हैं, प्रोपोजिशन है P Q एंड R, P Q एंड R। सो हमारे पास कितने प्रोपोजिशन हुए, 3। तो हमारी जो 2 प्रोपोजिशन में तो कितना ट्रूथ टेबल की वैल्यू मिल रही थी, 4, ओके। इट मीन्स 4 पॉसिबिलिटी थी। तो हमारी 3 प्रोपोजिशन हो गए, तो उसकी कितनी वैल्यू मिलेगी हमें, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, तो उसकी पॉसिबिलिटी होगी 8, ओके। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई 8 पॉसिबिलिटी, ओके। तो हमने क्या किया था, जब 2 by 2 मतलब 2 प्रोपोजिशन थे, तो 2 बार 1 1 और 2 बार 0 0 लिखा था। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 4 बार से स्टार्ट करना है, 4 टाइम हमें 0 लिखना है और 4 टाइम 1 लिखना है। बाद में क्यू में 2 टाइम 0 लिखना है, 2 टाइम 1 लिखना है। बाद में हमें Q1 0 1 0 1 0 1 0 1 अल्टरनेटिवली लिखना है। So this is a proposition truth table for the PQR for the 3 proposition, okay। 4 बार अगर हमारा ट्रूथ टेबल है वो 3 प्रोपोजिशन कंटेन कर रहा है, तो हमें क्या करना है, तो हमें 4 0 और 4 1 से स्टार्ट करना है। अगर हमारा प्रोपोजिशन है वो ओनली 2 कैरेक्टर, ओनली 2 प्रोपोजिशन कंटेन कर रहा है, तो हमें सिर्फ 2 वाले से स्टार्ट करना है, ओके। सो दिस इज अवर proposition value P, Q and R. Now we want to identify not P value and not Q value, okay। If our proposition are false, then our not proposition P are true, okay। If our proposition P are true, then our not proposition P are false, okay। So this is a not P value and same for the not Q value, okay। जहाँ 0 होगा वहाँ पर 1 होगा, जहाँ 1 होगा वहाँ पर 0 होगा। Now we want to merge और we identify this sentence, okay। हमें क्या करना है, P, Q and R तीनों में से एक को मर्ज करना है, तीनों में से मर्ज करना है, ओके। और ये वाला का क्या है, और है। और कंडीशन क्या कहती है, और कंडीशन ये कहती है, अगर किसी भी सेंटेंस, एक भी सेंटेंस है वो ट्रू होगा, तो हमें क्या करना है, एक भी सेंटेंस अगर ट्रू होगा ना, तो हमारा जो कोई भी आउटपुट है, जो कोई भी वैलिडिटी है, वो क्या आएगा, ट्रू आएगा, ओके। कोई भी एक सेंटेंस ट्रू होगा ना, बाकी 2 भले ही फॉल्स हो जाए, बट एक अगर ट्रू होगा, तो हमारा जो कोई भी और वाला मतलब हमारी जो वैलिडिटी है वो क्या होगी, वो हमारी ट्रू होगी, ओके। सो हियर अब हमें क्या करना है, इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करना है, वैलिडिटी करना है। यहाँ पर 2 1 है इसलिए 1, यहाँ पर तीनों 1 है इसलिए 1, यहाँ पर तीनों में से एक 1 तो है इसलिए 1, यहाँ पर 2 है इसलिए 1, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। इट मीन्स सब क्या है, फॉल्स है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 0, और यहाँ पर एक 1 है इसलिए 1, ओके। अगर यहाँ पर हमें और की बजाय एंड होगा, तो हमें क्या चाहिए, एंड होगा तो हमारी कंडीशन ये है कि हमारे सारे के सारे सेंटेंस ट्रू हो गए, तब भी हमारी वैलिडिटी क्या होगी, ट्रू होगी। तो अगर ये वाला सेंटेंस है वो और की बजाय एंड हो, तो सिर्फ ये को इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें सब ट्रू आ रहा है, इसको छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे, 0 होंगे, और ये वाला 1 होगा, ओके। बट इन दिस अवर केस दिस कंडीशन इज फॉर द और ऑपरेटर, ओके। तो यहाँ पर और है। नाउ वी आइडेंटिफाई अनदर सेंटेंस, ओके। अब हमने क्या किया, अनदर सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया है, क्यू और आर। क्यू और आर में से सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना है, अगर दोनों ट्रू फॉल्स है, यहाँ पर फॉल्स आएगा, सॉरी, ओके। अगर कोई एक फॉल्स है तो क्या आएगा, यहाँ पर 1, ओके। अगर कोई एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो आपको ये ऐसे करके करते क्या करना है, आपको एक ट्रूथ टेबल क्यू और आर का मिल जाएगा, ओके, क्यू और आर का, ओके, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 आएगा, ओके। Okay, this is a Q, okay। If both are 0 then 0, if any one is a true, okay, तो क्या होगा, true। This both are 0,
Okay, if both are 1 then obviously it is a 1. Okay, and last sentence is a P implies R. What is a P implies R? P implies R क्या कहता है? P implies R कहता है कि आपका जो सेकेंड सेंटेंस है वो अगर फॉल्स हो, इट मीन्स R का जो है वो फॉल्स होगा, तो हमारा आउटपुट क्या होगा? फॉल्स होगा. ओके, अगर P है, वो दोनों P और R दोनों 1 है. ओके, और P 0 है और R भी 1 है, तो यहाँ पर हमें देखेंगे P और R. P implies R. 0 implies 0, true. 0 implies 1, true. 0 implies 0, true. 0 implies 1, true. 1 implies 0 is equal to 0. 1 implies 1 is equal to true. 1 implies 0 is equal to 0 and 1 implies 1 is equal to 1. So this is a truth table. Okay, आपको प्रैक्टिस करनी होगी ट्रूथ टेबल आइडेंटिफाई करने के लिए. ओके, आपको ऐसे ही नहीं आएगा. ओके, सेम थिंग. ओके, ये मैं नहीं समझा रही हूँ, बट ये वाला एग्जाम्पल है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि वो वाला थोड़ा लंबा है. ओके, एक ही सेंटेंस है बट मैंने क्या किया यहाँ पर, मेरी इजी लगे इसीलिए मैंने क्या किया है, सेंटेंस को मैंने डिवाइड कर दिया है. सेंटेंस को कैसे डिवाइड कर दिया? वी हैव अ 3 प्रपोजिशन इट मीन्स P, Q and R. So we have a truth table like this. Okay, 8 possibility. Here we want not Q, not P, and okay we only want not P. Okay, so यहाँ पर हमने क्या किया है, not P को आइडेंटिफाई कर लिया है. अब हमें क्या करना है, हमारा जो सेंटेंस है ना उसको मैंने डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट सेंटेंस को मैंने क्या बोला है, Q एंड R को मैंने बोला है I1. सो दिस इज I1. ये जो कर्ली ब्रैकेट में जो लिखा है उसको मैंने क्या बोला है, I2. ओके, और ये वाले ब्रैकेट तो मैंने बोला है I3. तो यहाँ पर मैंने जो लिखा है वो सेम थिंग यही है, पर मैंने क्या किया है, I1, I2, I3 को नाम दे दिया है और बाद में उसको सॉल्व किया है. ओके, आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा, यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन दे दिया है. ओके, दिस इज अ इम्प्लाइज एग्जाम्पल. ओके, इसमें क्या है कि अलग अलग इम्प्लाइज का वर्जन है. अब वो यहाँ पर हमें नॉट कहीं पर भी यूज नहीं करना है, पर बट हमें यहाँ पर क्या करना है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R. ओके, तो मैंने क्या किया है, पहले मैंने Q इम्प्लाइज I को आइडेंटिफाई कर लिया, बाद में उसको क्या किया, उसको एक नाम दे दिया I1. I1 क्या है, P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R मीन्स P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज R. ओके, तो ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है. बाद में हमारा मुझे चाहिए I2 इट मीन्स P implies Q. दिस इज अ P implies Q and this is a P implies R. This is a P implies R and I2 implies I3 is equal to I4. Okay, so this is I4, but I1 is also implies I4, so this is I1 is also implies I4. So this is a implies example for the proposition logic. Okay, and this is for your reference or for your practice. Okay, आपको अपने आप से खुद से ट्राई करना है, इजी है, ऐसा ही है. आपको ये जो वर्जन है ना उसको आपको क्या करना है, Q इम्प्लाइज R को I1 ले लेना है, बाद में ये पूरे को I2 ले लेना है, बाद में P डबल इम्प्लाइज Q को आपको I3 ले लेना है और फिर आपको I4 ले लेना है. बाद में क्या करेंगे, I2 implies I4. ओके, I2 डबल इम्प्लाइज I4, तो आपको ये वाला सेंटेंस है वो मिल जाएगा. बाद में इसको भी क्या करना है, P डबल इम्प्लाइज Q को I1, नॉट Q इम्प्लाइज R को I2, P इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइज I को I3 और बाद में I2 I4 इम्प्लाइज I5. ओके, ये वाले आपको हो जाएगा. अगर नहीं होता तो मैं इसमें नेक्स्ट स्लाइड में उसका जो कोई भी है वो सॉल्यूशन दे दूंगी. ओके, सो दिस इज अ एग्जांपल फॉर द प्रोपोजिशनल लॉजिक. आपको प्रैक्टिस करनी होगी. आपको जो ट्रूथ टेबल है जो ऑपरेटर के लिए एंड और कंडीशनल एंड बाय कंडीशनल के लिए, वो आपको मगअप करने होंगे, आपको याद रखने होंगे. बाद में ही आपको ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो कोई भी एग्जाम्पल है वो सॉल्व कर पाएंगे. एग्जाम में अगर आपको याद ना रहे और आपको जल्दी जल्दी में गलती हो जाए तो आप साइड में रफ में या साइड में ये इम्प्लाइज के और एंड और के जो ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल है वो आप लिख सकते हैं. ठीक है, अपने आप के लिए आप लिख सकते हैं. ओके, थैंक यू.